گزشتہ روز سے چلنے والی ہواؤں نے موسم پھر تبدیل کر دیا ہے۔ ہوا کے باعث سورج کی تپش میں کمی آ گئی ہے، موسم خوشگوار ہو گیا۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں زین علی سے۔ زین، بتائیے گا۔ اچھا، بالکل صوبائی دارالحکومت لاہور میں جو ہے وہ گزشتہ روز شروع ہونے والی ٹھنڈی ہواؤں کے بعد لاہور کا جو موسم ہے وہ یکسر تبدیل ہو کر رہ چکا ہے۔ آج بھی شہر لاہور میں سورج جو ہے وہ پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، تاہم چلنے والی ٹھنڈی اور تیز ہوا نے سورج کی تپش کو جو ہے وہ کم کر دیا ہے، جس کے بعد شہر لاہور کا جو موسم ہے اس وقت کافی خوشگوار محسوس کیا جا رہا ہے۔ اگر بات کر لیجیے کچھ آج دن بھر رہنے والے شہر لاہور کے درجہ حرارت کی، تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر لاہور کا جو کم از کم درجہ حرارت ہے وہ 20 ڈگری جبکہ زیادہ سے زیادہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ اس وقت بھی شہر لاہور کا جو درجہ حرارت ہے وہ 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 52% تک ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت شہر لاہور میں جو ہے وہ 18 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹھنڈی تیز ہوا چلنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ دوسری طرف محکمہ موسمیات کی جانب سے تاحال جو ہے وہ بارش کی پیشگوئی نہیں کی گئی، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق جو گزشتہ روز ٹھنڈی ہوا چلنے کا جو سلسلہ ہے وہ آئندہ ہفتے تک بھی جو ہے وہ جاری رہے گا۔ دوسری طرف اگر بات کر لی جائے آج ایئر کوالٹی انڈیکس بھی جس میں جو ہے وہ کافی بہتری جو ہے وہ آج دیکھنے کو مل رہی ہے کہ کئی مہینوں بعد آج شہر لاہور کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 92 جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ زین۔ مافیا بے لگام انتظامیہ پولٹری مصنوعات کی قیمتیں کم کرنے میں ناکام۔ مرغی کا گوشت 595 روپے کی سطح پر برقرار، مارکیٹ میں صافی گوشت 780 روپے کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ فی درجن انڈوں کی قیمت 234 روپے برقرار ہے۔ مزید جان لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ عبدالقادر، بتائیے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں انتظامیہ پولٹری مصنوعات کی قیمتیں کم کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ مرغی کا گوشت 595 روپے کی سطح پر برقرار ہے۔ اسی پر موجود ہیں ہمارے ساتھ عبدالقادر، ان سے جان لیتے ہیں۔ عبدالقادر، بتائیے گا۔ بالکل برائلر گوشت کی قیمتیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں مستحکم نہیں ہو سکی، اور اس کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو برائلر کی بلیک مارکیٹنگ ہے اس پر کنٹرول نہیں کیا جا سکا ہے۔ سرکاری محکمے کچھ اور اعداد و شمار بتا رہے ہیں، جبکہ مارکیٹ کی صورتحال جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ سرکاری ریلیز میں برائلر گوشت کی قیمت 595 روپے فی کلو کی سطح پر برقرار رکھی گئی ہے، تاہم مارکیٹ میں صافی برائلر کے نام پر جو ہے وہ شہریوں سے 780 روپے فی کلو تک وصول کیے جا رہے ہیں۔ جبکہ زندہ برائلر کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو زندہ برائلر کی قیمتوں میں ہی بگاڑ جو ہے وہ سب سے پہلے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ فارم گیٹ ریٹ زندہ برائلر کا 380 ہے، لیکن مارکیٹ میں جو زندہ برائلر فارم گیٹ ریٹ چارج کیا جا رہا ہے وہ 475 ہے۔ اسی طرح ہول سیل زندہ برائلر کی قیمت 397 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن جو ہول سیل زندہ برائلر کی قیمت مارکیٹ میں چارج کی جا رہی ہے وہ 500 روپے فی کلو تک ہے، اور جو دکانداروں کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ اصل خرابی جو ہے وہ زندہ برائلر کی قیمتوں پر ہی ہے، جس کی وجہ سے وہ شہریوں کو سستا نہیں مل پا رہا ہے۔ اور انتظامیہ کی جانب سے بھی جو سرکاری اعداد و شمار پر مبنی ریٹنگ جاری کی جا رہی ہے وہ زمینی حقائق کے خلاف ہے۔ انڈوں کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو 234 روپے فی درجن قیمت برقرار رکھی گئی ہے۔ ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 6,900 روپے کی مقرر کی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ عبدالقادر۔ وزیراعظم کا عوام کے لیے بڑا ریلیف، بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمت میں فی یونٹ 7.59 پیسے کی کمی کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں 7.41 فی یونٹ کمی کی گئی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بجلی کی قیمتیں کم کرنے میں ٹاسک فورس نے دن رات کام کیا ہے۔ جون 2024 پچھلے سال 2024 میں جو گھریلو صارفین تھے ان کے لیے بجلی کی قیمت 48 روپے 70 پیسے تھی جون 2024 میں، مزید 7 روپے 41 پیسے فی یونٹ کمی ہم اس کا اعلان کر رہے ہیں، اور یہ تمام صارفین کو اب بجلی اوسطاً 34 روپے 37 فی یونٹ فراہم کی جائے گی۔ صنعتوں کے لیے فی یونٹ بجلی کی قیمت 58 روپے 50 پیسے تھی جون 2024 میں، آج
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से और आप सब की दुआओं, मेहनत और स्टार टीम की मेहनत की बदौलत आज उसमें मज़ीद 7 रुपये 59 पैसों की कमी का ऐलान कर रहा है। टास्क फोर्स ने थ्रू इमेजिनेशन, इनोवेटिव प्रोसेस, थ्रू आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, उन्होंने बड़े बड़े अच्छे ऑप्शंस वो लेके आए और फिर यकीन करें कि IMF को कायल करना बजाते खुद एक कार्यधारत था। IMF के साथ जो हमने प्रोग्राम तय किया है, ये वो एक अमानत है, कौम की अमानत है। और इस टास्क फोर्स ने IPBs के साथ ये मामला तय किया, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई मामूली अचीवमेंट नहीं थी। 3,696 अरब रुपए की बचत है, 2,393 अरब इस गर्दशी कर्जे का भी पक्का बंदोबस्त कर लिया गया है। बिजली की कीमतों में नुमाया कमी, वज़ीर आज़म ने बड़ा ऐलान कर दिया। बिजली की कीमत में 7 रुपये 59 पैसे फ़ी यूनिट कमी की गई है। अवाम की जानिब से फैसले पर खुशी का इजहार किया गया है। तफसीलात बता रहे हैं शासिब शहजाद अपनी इस रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अवाम को बड़ा रिलीफ, बिजली की कीमतों में नुमाया कमी का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट और सनतों के लिए 7 रुपये 59 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती की जा रही है, जिसके बाद घरेलू सार्फिन को 34 रुपये 37 पैसे फ़ी यूनिट जबकि सनतों को 40 रुपये 60 पैसे फ़ी यूनिट बिजली फराहम की जाएगी। करीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मंशूर में अवाम को महंगाई से निजात दिलाने का वादा किया था। 1 साल के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 38% कमी की गई। बिजली की कीमतों में कमी के बगैर कोई शोबा तरक्की नहीं कर सकता। अवाम की जानिब से भी इस फैसले पर खुशी का इजहार किया गया है। शहरियों का कहना है, अवाम दोस्त इकदामात जारी रहे तो महंगाई में कमी की उम्मीद की जा सकती है। टैक्सेस पर भी नजर सानी की जाए। बिजली 7 रुपये यूनिट सस्ती हो गई है और अगर इसी तरह हुकूमत काम करती रहे और दिन ब दिन रिलीफ मिलता जाए तो हमारे लिए खुशी की बात है। यूनिट तो ठीक है, आपकी मेहरबानी है, आपने कम कर दिया, लेकिन जो टैक्स है ना उनके ऊपर कोई नज़रसानी करें ताकि आवाम को रिलीफ मिले। बहुत अच्छा कदम है, ये महंगाई को सस्ता करेगा, मतलब जो इन्फ्लेशन हुई हुई है इस वक्त। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म के इस इकदाम को सराहते हुए कहा, बिजली के निर्खों में कमी ईद के मौका पर कौम के लिए बड़ा तोहफा है। तारीख गवाह है, जब भी नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए मुल्क को बहरानों से निकाला और अवाम को हकीकी रिलीफ दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी, वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर और वज़ीर औकाफ चौधरी शाफे हुसैन ने भी बिजली की कीमतों में कमी पर इजहार तशक्कुर किया और कहा, ये फैसला महंगाई के तूफान को रोकने में मुआविन साबित होगा। कैमरामैन फैसल के साथ शाहजेब शहजाद, लाहौर न्यूज़। पंजाब में अपनी नौयत का पहला और मुनफरिद सहूलत ऑन दी गो बाजार प्रोजेक्ट लाने का फैसला वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर में पायलट प्रोजेक्ट के लिए 4 माह का हदफ मुकर्रर कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रज़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सरबराही में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी चेयरमैन मोहम्मद अफजल खोखर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साजिद जफर डाल समेत मुतालिका अफसरान शरीक हुए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सहूलत ऑन दी गो बाजार प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी दे दी। लाहौर में 14 मकामात पर पायलट प्रोजेक्ट के लिए प्लान तलब कर लिया। पंजाब की हर तहसील में सहूलत ऑन दी गो प्रोजेक्ट शुरू करने पर इत्तिफाक हुआ। वज़ीर आला ने सहूलत ऑन दी गो पायलट प्रोजेक्ट के लिए 4 माह का हदफ मुकर्रर कर दिया। पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी ने वज़ीर आला मरियम नवाज को मॉडल बाजार पर रिपोर्ट पेश की। पंजाब में लॉ ऑफिसर समेत तमाम महकमों में भर्तियों का मामला, वज़ीर आला मरियम नवाज ने हुकूमती पॉलिसी वाज़े कर दी। कहा, लॉ ऑफिसर्स समेत तमाम महकमों में तैनाती 100% मेरिट पर होनी चाहिए। सिफारिशी कल्चर ने सिस्टम की जड़ें खोखली कर दी हैं। सिफारिशी कल्चर से शदीद नफरत है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि सिफारिशी कल्चर खत्म करके मेरिट के कल्चर को फरोग दे रहे हैं, जिससे सिस्टम में बेहतरी नजर आ रही है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। ईद अपने प्यारों के साथ मनाने के बाद परदेसियों की वापसी, शहर के बस स्टैंड्स और रेलवे स्टेशन पर गैर मामूली रश। वापस आने वालों ने कहा कि ईद आबाई इलाके और घरों में मनाकर दिली खुशी हुई है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुर्रहमान। सरकारी महकमों की ईद तातीलात खत्म हो गई। अपने प्यारों के साथ ईद उल फितर मनाने के बाद परदेसियों की वापसी शुरू हो चुकी है, जिसके बायस जनरल बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर परदेसियों की वापसी से रश बढ़ गया है। मुसाफिरों का गैर मामूली रश देखकर ट्रांसपोर्टर्स एक बार फिर मुतहरिक हो गए। मुसाफिरों का कहना है कि आबाई घरों में गुजरा वक्त बहुत ही अच्छा था। फैसलाबाद अपने शहर में ईद मनाने के लिए गया था, 3 दिन के लिए गया था, तो लेकिन जैसे मैंने वापस आने के लिए सामान बांधा तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करे, मजबूरी है, नौकरी
एंट्री वगैरह करनी होती है, तो जैसे अब वापस आए, अब इंशाल्लाह कहाँ पे वापस जाएंगे तो इंशाल्लाह दिल भी लग जाएगा। हम गए थे लाहौर से फैसलाबाद, और फैसलाबाद से अभी वापस आए हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, और रेलवे में बड़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। ज़्यादातर जो इसमें डिजिटल हुआ है ना सिस्टम, वो ज़्यादा बेस्ट है। ईद की तातीलात खत्म होने के बाद रेलवे स्टेशन पर आए मुसाफिरों ने हुकूमत पंजाब के इंतजामात को सराहा। महकमा दाखिला पंजाब ने ईद से कबल रिहा होने वाले कैदियों की तफसीलात जारी कर दी। पंजाब में 469 कैदियों ने रिहाई मिलने पर अहले खाना के साथ ईद मनाई। सदर मुमलिकत की जानिब से सज़ा माफ़ी पर 1789 कैदियों को फ़ायदा मिला। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा खुर्शीद। ईद से कबल रिहा होने वाले कैदियों की तफसीलात जारी। पंजाब में 469 कैदियों ने रिहाई मिलने पर अपने प्यारों के साथ ईद मनाई। सदर मुमलिकत की जानिब से सजा माफी पर 1789 कैदियों को फायदा हुआ। 1606 कैदियों की सजा में 6 माह कमी हुई, जबकि 183 असीरों को रिहाई मिली। हजरात और इदारों की जानिब से जुर्माने, दियत, अर्श और दमान की अदायगी पर 281 कैदी रिहा हुए। ज़कात की मद में कैदियों की दियत, अर्श, दमान और जुर्माने की रकम अदा की गयी। कैदियों के जुर्माने अदा करके ईद से कबल उन्हें रिहाई दिलवाई गयी। माह सयाम के दौरान तालीम मुकम्मल और अच्छे किरदार का मुजाहरा करने पर 5 कैदी रिहा हुए। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक मुखय्यर हजरात कैदियों की रिहाई के लिए पंजाब प्रिजन फाउंडेशन के अकाउंट में अतियात जमा करवा सकते हैं। IG पंजाब ने मुतअद्दिद पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। SP कैंट अवैस शफीक का तबादला काजी अली रजा SP ऑपरेशंस लाहौर कैंट तैनात, बिलाल अहमद SP ऑपरेशन सिटी डिवीजन, मोहम्मद अफजल DSP MT वर्कशॉप लाहौर तैनात, जमील अहमद साजिद DSP ऑपरेशंस PHP हेडक्वार्टर, SR अली को SP ऑपरेशंस इकबाल टाउन लगा दिया गया। मोहम्मद उमर SP इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइंस तैनात, SP अवैस शफीक को MC कोर्स के लिए CPO रिपोर्ट करने का हुक्म, और शफकत रशीद को DSP इन्वेस्टिगेशन कैंट तैनात, जबकि SSP मोहम्मद रज़ा तनवीर को CPO लाहौर ट्रांसफ़र कर दिया गया है।